Healthy soil, healthy people movement. A revolutionary step toward building a greener and healthier India. इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नज़ीर कैसर साहब का बहुत खूबसूरत सा शेर है और मिलिंद साहब की इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद वो शेर मुझे याद आता है कि वो कहते हैं, मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूँ, मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूँ, मैं धरती का गीत सुनाने आया हूँ। उसी धरती के लफ्ज़ों को आप सभी के सामने रखने का प्रयास एक कोशिश है हरित सेवा। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट्स अ सेवा टूवर्ड्स द मदर नेचर। और इस सेवा में, इस रेवोल्यूशन में जुड़ने के लिए आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एज आवर हिंदू ट्रेडिशंस, व्हेनेवर वी स्टार्ट एनीथिंग पॉजिटिव, किसी भी शुभ काम की, शुभ कार्य की शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहले हम नमन करते हैं गणेश जी को। आज की इस शुभ कार्य की, शुभ दिन की शुरुआत भी हम गणेश जी को याद करके, उनको वंदन करके करने वाले हैं। आई वुड रिक्वेस्ट हेमंत जी टू प्लीज स्टार्ट द गणेश वंदना। हेमंत जी, ओवर टू यू। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, आकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णू, आकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णू, मकार महेश जाणियेना। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न, ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न, तो हा गणन माय पाप। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, तुका म्हणे ऐसी आहे देववाणी, तुका म्हणे ऐसी आहे देववाणी, पहावी पुराणे त्याची रेवा। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। गणपती बाप्पा। Thank you, Hemant ji, and the other staff members of Bhumi Seva for this melodious start of this morning. Please put your hands together. Let me see the energy and your participation on this grand launch of Harit Kranti 2.2, a healthy soil and healthy people movement. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेल्दी सॉइल के बारे में बात करते हुए, इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस एज आई मेंशन। यूनाइटेड नेशंस SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, today everybody is concerned about environment. It's not like something that is being done new, but it's something that is more concerning to you and us now. We've been eating food और हमारी पहले की जनरेशन्स हमें कहती है कि आप हमारी तरह मजबूत नहीं हैं। बस इसकी वजह खोजते खोजते पता चला हमारी थाली में जो खाना परोसा जाता है
That might be the tastiest food. But is it the nutritious food? The answer is, of course, no. To make it more nutritious and to make it more environmental friendly and sustainable, here Harit Kranti is making its first step towards it. इसमें आप सभी का सहभाग और योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस ग्रैंड लॉन्च में उपस्थित सभी का हम स्वागत करते हैं और कुछ ही देर में अप्पा साहेब का भी यहाँ पे आगमन हो रहा है। तब तक I would request भूमि सेवा के चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर श्री प्रशांत माथुर जी to please address the audience. A big round of applause for Mr. Prashant Mathur. Good morning and a very warm welcome to everyone. On behalf of Team Bhumi Seva, I take this opportunity to welcome all of you to the official launch of Healthy Soil, Healthy People movement. Today is a very special occasion as we also celebrate the 75th birthday of Sri Appa Shinde, a visionary leader and chairman of AIOCD, representing an incredible network of over 12 lakhs chemists across the country. As he marks his 75th birthday, we honor his inspiring contribution and lifelong dedication to the welfare of people and the nation. We are gathered here today with a common mission, a drive sustainability, health and well-being to every corner of our country. Through this movement, we aim to connect with every citizen through AICD network, making Healthy Soil, Healthy People movement a reality and empowering the farmers and general citizens alike. This movement is a testament to our collective commitment to healthier soils and sustainable farming practices. Let us begin this momentous occasion by welcoming our distinguished guests and all attendees. Your presence will make this event truly memorable. A warm welcome again to all the dignitaries, partners, participants who have joined us today. Your presence reinforces us the importance of this cause and motivates us to move forward with greater zeal. So let's get started on this incredible journey towards sustainability and well-being. Together we can make a difference for our generations to come. Thank you so much. Thank you so much, Shri Prashant Mathur जी, चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर भूमि सेवा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली एक वीडियो की ओर। The video again highlights the importance why the work done by Bhumi Seva is so crucial, not just for the environment, but also to you and me and to everyone. The video, please. होलोसीन या नूतनतम युग 11,000 सालों से ज्यादा समय तक संतुलन और समृद्धि का युग रहा। इस दौरान मनुष्य प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाता रहा, लेकिन आज हम एंथ्रोपोसीन या मानव युग का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा युग जो मानवीय गतिविधियों द्वारा आकार दिया गया है। वनों की कटाई, शहरी फैलाव और औद्योगिक कृषि ने हमारी जलवायु को अस्थिर कर दिया है। हमें अपनी दुनिया की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। भूमि सेवा में हम होलोसीन तथा नूतनतम युग के संतुलन को वापस लाने के मिशन पर हैं। हमारा दृष्टिकोण सरल है, हर पत्ते, हर किसान और हर समुदाय को इस मिशन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। प्रगत तथा नेचुरल खेती के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके हमारा उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। हम पत्तियों की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे वे इस आवश्यक गैस को सोखने और उपयोग करने में अधिक कुशल बनती है। ऐसा करके हम पौधों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, जो एक अधिक सशक्त पर्यावरण में योगदान देता है। प्रत्येक पत्ती अनिवार्य रूप से एक कार्बन डाइऑक्साइड पैनल बन जाती है, जो वातावरण में CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। यह अभिनव दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। यह न केवल फसल की पैदावार में काफी वृद्धि करता है, अधिक भोजन प्रदान करता है, बल्कि कार्बन को जड़ों में स्थानांतरित करता है, जिससे मिट्टी समृद्ध होती है। स्वस्थ मिट्टी का अर्थ है बेहतर जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता, जो एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है। मिट्टी के जैविक कार्बन को बढ़ाकर अस्वस्थ मिट्टी को शक्तिशाली कार्बन सिंक में बदल दिया जाता है। हमारे तरीके अग्निहोत्र जैसे प्राचीन तरीकों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हैं। हम 12.5 लाख केमिस्ट की दुकानों और भूमि साथी चैटबॉट के माध्यम से
देश भर के किसानों और नागरिकों तक पहुंच रहे हैं। हमारा 360 डिग्री दृष्टिकोण मिट्टी के स्वास्थ्य, पौधों के स्वास्थ्य, मानव कल्याण, जैव विविधता बहाली और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। कल्पना कीजिए, अरबों पत्ते कार्बन को सोख कर रहे हैं और फसल की पैदावार 25 से 30% तक बढ़ रही है। साथ मिलकर हम एक स्वस्थ, समृद्ध भारत बना सकते हैं। भूमि सेवा की हरित क्रांति 2 में शामिल है। भूमि साथी चैटबॉट 9099699699 को हाई कहें। आइए साथ मिलकर संतुलन बहाल करें। Our esteemed guest, Honorable श्री अप्पा साहेब शिंदे is right here. उनका यहाँ पे आगमन हो रहा है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी। It's also a very special day since it's its 75th birthday that is being celebrated today, and nothing can be a better occasion to launch this movement, Harit Kranti 2.0. Please put your hands together for our honorable guest, Shri Appa Sahib Shinde. I would request also Shri Milind Deshpande, CEO Bhumi Seva, to accompany sir on the stage. I would request all our esteemed guests to please light the lamp. प्रथेप्रमाणे सर्वप्रथम दिव्याचं प्रज्वलन हे आपल्या संस्कृतीमध्ये फार महत्त्वाचं मानलं जातं. I would request all our guests to be please seated. भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी सेड, अगर मुझे भारत के लिए स्वतंत्रता चाहिए तो मुझे भारत के उन लोगों तक पहुंचना होगा जो मिट्टी से जुड़े हैं. 75% of Indians still lives in villages till the date, and hence it's our responsibility to cater to that population. With that aim and objective, with the vision to serve the last mile, Bhumi Seva is making an effort through Harit Kranti. Harit Kranti is an initiative that not only empowers farmers but also enables you and me to have a food that not just gives you the nutrition but gives you a better life too. This is a step towards a greener and better future for India. अधिक वक्त ज़ाया ना करते हुए जिस सेरेमनी के लिए आज आप और हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उस सेरेमनी की ओर बढ़ते हैं. हमारे बीच उपस्थित सभी गेस्ट का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी. Our very own Shri Jagannath Sakaram Shinde, who was also known as Appa Sahib Shinde, a big round of applause for him. A visionary leader and a great humanitarian who dedicated his life for the healthcare industry in India. He is no longer an unknown name to anyone working in the medical or chemist job. He provided economical cost-friendly medicines to the last mile in India. He is the founder chairman of MSCDA and AIOCD Limited. His vision of building world-class pharmacy logistics chain, offering storage of pharmaceutical products, allied retailing and distribution services inspired him to launch MSCDA Limited and AIOCD Limited. Thank you, Appa Sahib, for being here. तुमच्या येण्यानं खरंच आम्हाला फार आनंद झालेला आहे. तुम्ही आम्हा सर्वांसाठी एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहात. मी तुम्हाला आणि उपस्थित सगळ्याच मान्यवरांना विनंती करेन, हरित क्रांती ग्रँड लॉन्चसाठी आपण कृपया रिबन कट करून हरित क्रांतीचं लॉन्च करायचं आहे. I would request all our guests to please be on stage once again for the grand launch ceremony of Harit Kranti 2.0
healthy soil, healthy people movement. We are moving towards the ribbon cutting ceremony. Please put your hands together. It's a very special day, not just because it's a grand launch of Harit Kranti 2.0, but it's also a very special day for our own Appa Saheb to celebrate his 75th birthday. रतन टाटा once very beautifully said, अगर आपको एक साल में किसी चीज़ में तरक्की हासिल करनी हो तो फूल लगाइएगा, फूल उगाइएगा। अगर आपको किसी चीज़ में तरक्की 10 साल में हासिल करनी हो तो आपको फल के झाड़ लगाने चाहिए, फलों के झाड़ लगाने चाहिए। और लेकिन अगर आपको ज़िंदगी भर तरक्की हासिल करनी है तो आपको अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहिए। बस यही लोगों को जोड़ने का काम पिछले 75 वर्षों से हमारे साथ अप्पा साहिब कर रहे हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन सर, एंड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर दिस ग्रैंड जेस्चर ऑफ लव फॉर आवर ओन अप्पा साहिब। मैं हमारे CEO श्री मिलिंद देशपांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हम अप्पा साहिब जी को फेलिसिटेट करें। Please put your hands together. I would request Dr. Varki to please be on stage to felicitate Mr. Appa Sahib. अप्पा साहेब हे तुमच्या प्रति प्रेम आणि तुमच्याकडून आजपर्यंत मिळालेल्या शिकवणींतून हा प्रेमाचा वर्षाव हे सगळे उपस्थित मान्यवर तुमच्यावर करता आहेत. कृपया त्याचा स्वीकार करावा हीच विनंती. बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. मी अप्पा साहेबांना विनंती करेन आपण इथे उपस्थित सर्वांशी संवाद साधावा. अर्थात तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी आणि लॉन्चच्या निमित्तानं उपस्थित ही सगळी मान्यवर मंडळी तुम्हाला ऐकण्यासाठी अतिशय उत्सुक आहेत. रिक्वेस्टिंग. त्यापूर्वी श्री मिलिंद देशपांडे CEO भूमि सेवा हे आपल्या सगळ्यांसमोर त्यांचे विचार मांडणार आहेत. पुट योर हैंड्स टुगेदर. जिनके सोच और विचार से ये पूरा लॉन्च, ये पूरा थॉट, ये कंसेप्ट आज उभर कर आप सभी के सामने मौजूद है. मिस्टर देशपांडे. नमस्कार. हरित क्रांती 2.0 हा विचार मनात जेव्हा आला तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाची ही गोष्ट होती की या सगळ्याला लोकांपर्यंत कसं पोचवावं आणि त्याच्यासाठी जो सगळ्यात महत्त्वाचा दुवा होता तो म्हणजे की ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अप्पासाहेब. आणि त्यांनी गेली 32 ऑर्गनायझेशन्स तयार करून जवळजवळ आज भारतामध्ये जवळजवळ 12.5 लाख केमिस्ट शॉपचं नेटवर्क तयार केलेलं आहे. आणि हे 12.5 लाख केमिस्ट शॉपचं नेटवर्क या पर्टिक्युलर मुवमेंटला एका पर्टिक्युलर लेवलला घेऊन जाईल. माझा एक व्हिडिओ आहे तो मी जरा लावू इच्छितो. नमस्कार, मैं मिलिंद देशपांडे मिट्टी की बात में आपका स्वागत करता हूँ. ये भूमि सेवा के CEO का एक दिल से किया गया प्रयास है जिससे लोग हेल्थी सॉइल हेल्थी पीपल मूवमेंट से जुड़े. आज मैं भूमि सेवा की अमेजिंग जर्नी के बारे में और कैसे हम हरित क्रांति 2.0 लाने का प्रयास कर रहे हैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. भूमि सेवा का सफर एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से शुरू हुआ. हमारी मिट्टी को फिर से जीवित करना, हमारे किसानों को सशक्त बनाना और हर नागरिक के लिए एक हेल्थी फ्यूचर सुनिश्चित करना. पिछले कुछ सालों से हम इंडियन एग्रीकल्चर को परेशान करने वाले मुख्य मुद्दों मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज्यादा इस्तेमाल और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के बीच जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.
क्या आप जानते हैं कि हेल्थी सॉइल का सीधा असर हमारे देश के हेल्थ और इकोनॉमी पर पड़ता है? मिट्टी न केवल हमारे एग्रीकल्चर का आधार है, बल्कि फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी कुंजी है। लेकिन सच्चाई चिंताजनक है। हमारे किसानों को अक्सर सही सॉइल डेटा नहीं मिल पाता है और वो फर्टिलाइजर्स पर ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे आर्थिक तंगी होती है और फसल की क्वालिटी घटती है। कंज्यूमर्स होने के नाते हम भी इस बात से अनजान हैं कि सॉइल हेल्थ हमारी थाली में आने वाले खाने की क्वालिटी को कैसे प्रभावित करती है। यह इग्नोरेंस एक ऐसा विशेष साइकिल बनाता है जहां किसान और कंज्यूमर्स दोनों को नुकसान होता है। अब समय आ गया है कि इस साइकिल को तोड़ा जाए। भूमि सेवा में हम कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ में विश्वास करते हैं। AIOCD जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हमें पूरे भारत में 12.5 लाख केमिस्ट से जोड़ते हैं और ये 12.5 लाख केमिस्ट हमें भारत की पूरी आबादी से जोड़ते हैं। मैन्युफैक्चर ग्रुप, SME चेंबर ऑफ इंडिया, हाई मीडिया लैबोरेटरीज, इमारा और नेसोको के साथ हम एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे सॉल्यूशंस हर नागरिक और किसानों तक पहुंचे, दूर दराज के गांवों में। हाई मीडिया लैबोरेटरीज के स्टेट ऑफ द आर्ट सॉइल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए भूमि सेवा 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रदान करता है। हमारा ब्लू विजन डिवाइस सिर्फ 30 मिनट में एक्यूरेट, पोर्टेबल और अफोर्डेबल सॉइल टेस्टिंग देता है, जिससे किसानों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है। हम क्रॉप स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जिससे फर्टिलाइजर का गलत इस्तेमाल कम होता है और किसानों के पैसे बचते हैं। पर हमारा मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम किसानों को नेचुरल और बैलेंस्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी एजुकेट कर रहे हैं और साथ ही कंज्यूमर्स को हेल्थी सॉइल के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस गैप को कम करके हम एक ऐसा मूवमेंट बना रहे हैं जिससे सभी को फायदा होता है, किसानों को, कंज्यूमर्स को और एनवायरनमेंट को। भूमि सेवा की हरित क्रांति 2.0 सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, यह एक रेवोल्यूशन है। एक मजबूत पार्टनर नेटवर्क के साथ हमारा लक्ष्य हर गांव, हर किसान और हर घर तक पहुंचना है। मिलकर हम सॉइल हेल्थ की चुनौतियों का 360 डिग्री अप्रोच से समाधान कर रहे हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। हेल्थी सॉइल का मतलब है हेल्थियर क्रॉप्स, बेहतर पोषण और हमारे बच्चों के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर। भूमि सेवा के साथ जुड़कर आप सिर्फ एक किसान का सपोर्ट नहीं कर रहे, आप हमारे प्लेनेट के फ्यूचर का पोषण कर रहे हैं। मैं आप सभी को इस रेवोल्यूशन में शामिल होने के लिए इनवाइट करता हूं। चाहे आप एक किसान हो, एक कंज्यूमर हो या एक पार्टनर, हरित क्रांति 2.0 में सभी के लिए एक रोल है। चलिए एक सॉइल टेस्ट के साथ एक बदलाव लाते हैं। हरित क्रांति 2.0 में शामिल हो। भूमि सेवा के साथ रजिस्टर करने के लिए भूमि साथी को व्हाट्सएप पर 9099699699 पर हाय कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस थॉट प्रोवोकिंग वीडियो। और इसी के साथ हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारे गेस्ट श्री जागुष्टी जी का हम स्वागत करेंगे। मैं देशपांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे उपस्थित सारे गेस्ट का वो स्वागत करें। Request Mr. Danve, Director AIOCD, to please share his thoughts with all of us, and then we'll play a video. Over to you, Mr. Danve. Thank you. First of all, let me greet a great leader, the visionary Appa Sahib, for his 75th birthday. Members present on the dais, Mr. Jagushte, Mr. Deshpande, all the stakeholders of Bhumi Seva, the associated companies associated with Bhumi Seva, my colleagues from AICD, MSCDA, and all the distinguished guests. It has been a long journey
that the AICD Pharma Limited has joined hands with Bhumi Seva for the noble cause of fertilizer free or bioavailable produce to be given to the end consumers with the guidance of respected Appa Sahib, with the vision of Mr. Jaguste. We are marching ahead to achieve that mission, that goal, that every citizen of India should get a good quality food, grains, fruits, and everything. Today, I congratulate again Mr. Deshpande for organizing this event. I hope a better future and a better association with all of you. Thank you. Thank you very much. Kindly play the video. Lights. नमस्कार मेरे प्रिय साथी केमिस्ट भाइयों और बहनों, आज मैं प्रसाद दानवे AIOCD का व्यवस्थापकीय संचालक आप सभी के साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करने आया हूं जो हमारे देश की कृषि, पर्यावरण और किसानों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। पिछले कुछ समय में मैंने भूमि सेवा टीम के साथ गहन चर्चा की और कई भूमि सेवा केंद्रों का दौरा किया। मैंने इस मॉडल को न केवल समझा बल्कि इसकी व्यावसायिक क्षमता और सामाजिक महत्व को करीब से देखा। भारत में मिट्टी परीक्षण की भारी कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में 14 करोड़ से अधिक कृषि भूमि सर्वे नंबर्स है। हर ग्राम पंचायत में एक मिट्टी परीक्षण केंद्र होना चाहिए, जिसका मतलब है कि भारत को लगभग 2.5 लाख मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास केवल 5000 लैब्स हैं। मैंने मिलिंद देशपांडे, CEO भूमि सेवा से चर्चा की और उन्होंने मुझे आधार कार्ड परियोजना का उदाहरण दिया। आधार तभी सफल हुआ जब विभिन्न उद्योगों और सेवा प्रदाताओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण उपकरण लगाए। इसी तरह मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड को सफल बनाने के लिए मिट्टी परीक्षण उपकरणों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना बेहद जरूरी है। इस अंतर को भरने के लिए मैंने भूमि सेवा टीम के साथ एक योजना तैयार की। हमने तय किया कि केमिस्ट नेटवर्क को इन उपकरणों और उनके केमिकल कार्ट्रिज के लिए स्टॉक पॉइंट के रूप में जोड़ा जाए। भारत के 15 राज्यों और 533 जिलों में 94% कृषि भूमि समाविष्ट होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे देश में स्टॉकिस्ट्स नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस पहल को स्वयं नेतृत्व देने के लिए भूमि सेवा के साथ अपने क्षेत्र का स्टॉकिस्ट एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं। भूमि सेवा ने अपने साझेदारों, मृदा परीक्षण उपकरण, जैव उत्पादों का चयन बेहद सावधानी पूर्वक किया है। हमारा उद्देश्य है कि अगले 5 से 10 वर्षों में भारत की मिट्टी को 100% जैविक बनाया जाए। हमारे सहयोगी वॉरकेम कृषि ने पहले ही वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के साथ काम करके 3 वर्षों में उत्पाद बढ़ाकर 100% जैविक गन्ना उत्पादन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है। इसी तरह हमारे सहयोगी औसान ने कई परियोजनाओं पर काम किया है, जहां उनके मैजिक औषधि के उपयोग से न केवल पैदावार बढ़ी, बल्कि हर फसल चक्र में मिट्टी के जैविक कार्बन में 58% तक की वृद्धि हुई। इस तरह के उत्पाद जहां एक मिट्टी पर कार्य करता है और दूसरा पत्तियों के माध्यम से मिट्टी तक पोषण पहुंचाता है, मिट्टी को जैविक बनाने के लिए बेहद जरूरी है। आज भारतीय किसान अपने उत्पादों को रसायन अवशेषों के कारण वैश्विक बाजारों में निर्यात नहीं कर पाते। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस तरह के क्रांतिकारी दृष्टिकोण से भारतीय कृषि का परिदृश्य बदल जाएगा और भारत दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है। मैंने एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता देखी, बायो फर्टिलाइजर ग्रोथ बूस्टर्स और सॉइल रिजुविनेटर्स की उपलब्धता। कुछ जैव उर्वरक लाने ले जाने में बहुत भारी होते हैं और उन्हें हर जिले में स्टॉकिस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना जरूरी है। वॉरकेम एग्री के कंट्रोल यूनियन सर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स और ग्रोथ बूस्टर्स को पूरे देश में किसानों और पर्यावरण के हित के लिए उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।
साथ ही औसान के बायोस्टिमुलेंट जैसी क्रांतिकारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना भी जरूरी है। इस तथ्य पर विचार करते हुए हमने जैविक उर्वरक बड़े वितरकों के लिए बिजनेस मॉडल तैयार किया है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दवा वितरण के साथ साथ हमारे साथी वितरक जैव उर्वरकों का वितरण भी कर सकते हैं। प्रिय साथियों, ये आंदोलन केवल एक व्यवसाय का अवसर नहीं है, यह पर्यावरण, किसानों और हमारे देश के भविष्य के लिए हमारा योगदान है। हम इस आंदोलन और मॉडल को पहले महाराष्ट्र राज्य में शुरू कर रहे हैं और फिर हम पूरे भारत में इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी से हरित क्रांति दो, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ लोग आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील करता हूं। इस आंदोलन से जुड़ने के लिए बस व्हाट्सएप पर 9099699699 भूमि साथी चैटबॉट पर हाय करें और अपनी हरित क्रांति 2 की सदस्यता सुनिश्चित करें। यह आंदोलन मिट्टी को बचाने, किसानों की मदद करने और हमारी धरती मां को संरक्षित करने का माध्यम है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ भारत। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दानवी साहब, इस पूरे विचार के साथ जुड़ने के लिए मैं भूमि सेवा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे साथ मंच पर उपस्थित श्री वैजनाथ जागुष्टे सर। Jagushte sir has played various roles in his career, a name that is not new to anyone sitting here. He has been Secretary of AIOCD, Treasurer of MSCDA, and Founder Director of AIOCD Pharma Limited. As a Managing Partner of Anup Medicare LLP and Director of Bridge Informatics Private Limited, he combines his expertise in pharmacy, commerce, leadership to drive the impactful venture. Over to you, Jagushte sir. थँक्यू. माझा पण व्हिडिओ आहे, त्यामुळे मी 2 मिनटात घेईन फक्त तुमची. देशपांडे साहेबांची आणि आमची जेव्हा पहिली मीटिंग झाली त्यावेळेला आप्पांकडे आम्ही जेव्हा गेलो त्यावेळेला आप्पांनी पहिलं जे आम्हाला विजन दिलं होतं, पहिलं जे आम्हाला स्टेटमेंट दिलं होतं ते मला अजून लक्षात आहे की माझ्या लोकांना मला असं खाद्य द्यायचं आहे की त्याच्यामध्ये केमिकल किंवा फर्टिलायझरचा अंश असता कामा नये. तर त्याच्यानंतर आमच्या पुष्कळ चर्चा झाल्या, पुष्कळ म्हणजे आमचं मंथन झालं, थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने पण झालं. परंतु आमचा एक अनुभव आम्ही शेअर केला होता देशपांडे साहेबांनी त्यांच्या सर्व टीमला की कुठलंही मिशन ते किती चांगलं असलं तरीसुद्धा तर ते कमर्शियल व्हायबल नाही झालं तर ते सस्टेन राहत नाही. आणि किती चांगलं असलं तरी पण ते सस्टेनेबिलिटी जी संपली की ते मिशन पण कुठेतरी जाऊन थांबतं. आणि याच्याकरता आपल्याला हे सक्सेसफुल जर करायचं असेल, कारण हे मिशन खूप चांगलं आहे, ह्याच्याबद्दल वाद नाही. कारण ज्यावेळेला आम्ही पहिल्यांदा सुरुवातीला त्यांच्या पहिले व्हिडिओज पाहिले तर काही वर्षानंतर 30-35 वर्षानंतर आपल्याला जमिनीत काही उगवेल की नाही अशा पद्धतीच्या आपण ह्याच्याकडे जातो आहे, अशा पद्धतीच्या भविष्याकडे आपण जातो आहे. तर हे थांबवणं गरजेचं आहे. आणि जाता जाता आमचं मध्ये मंगलोरमध्ये एक मिटिंग झाली. त्या मंगलोरच्या मिटिंगमध्ये मी एक स्टेटमेंट केलं होतं, मला अजून आठवतं आहे. त्यावेळेला खूप लोकांनी त्याचं कौतुक पण केलं होतं की म्हटलं आम्ही बेसिकली औषध विकणारे लोक आहोत, सर्व 12 लाख लोक. आणि 12 लाख लोक औषध केव्हा विकतो की समोरचा आजारी पडला तर विकतो. तेव्हा आमचा धंदा वाढतो कधी जर आजारी पडला तर. आणि देशपांडे साहेब तुम्ही मला सांगता ह्याचं आजारीच पडू नये असं औषध तुम्ही घेऊन आलेत, तेव्हा आमच्या धंद्यावर उद्या परिणाम होईल की काय, तर अशा पद्धतीचं मी स्टेटमेंट केलं होतं. परंतु शिंदे साहेबांचं जे नेचर आहे, शिंदे साहेबांचा जो मूळ गाभा आहे तो हाच आहे की माझा नुसता मेंबर नाही तर मेंबरसोबत असणारे सर्व जनतासुद्धा ही चांगली स्वास्थ्य रक्षक झाली पाहिजे. आणि त्याचं आजचं फलित तुम्हाला सांगतो की मी आता थोडंसं यांच्याकडनं परमिशन घेऊन सांगतो की गेल्या 24 तारखेला आप्पांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही पूर्ण भारतामध्ये ब्लड डोनेशन कॅम्पचं एक मिशन हातात घेतलं होतं. आणि आज जसं शिंदेसाहेबांचं महाराष्ट्रात जो 1-to-1 कॉन्टॅक्ट आहे, अगदी छोट्या रिटेलरपासून होलसेलरपासून सगळ्या ऑफिस बेररपासून तसाच कॉन्टॅक्ट सर्व राज्यामध्ये आहे. आणि त्याचाच फलित म्हणून आज जवळजवळ सगळ्या स्टेटचे सर्व पदाधिकारी
आणि सगळ्या जिल्ह्यांचे पदाधिकारी आज संध्याकाळी इथे येणार आहेत, आपण भेटायला येणार आहेत. आणि हा 75वाचा जो एक म्हणजे सोहळा आहे तो आम्ही पूर्ण देशातल्या लोकांना अर्पण करण्यासाठी म्हणून ब्लड डोनेशन जी ड्राईव्ह घेतली त्याची नोंद आमच्या भारतातल्याच नव्हे तर जागतिक, ज्याला काय म्हणतो आपण, ती गिनीज वर्ल्ड पुरस्कारने केली. आणि कदाचित संध्याकाळपर्यंत त्याचं रेकग्निशन पण येऊन जाईल, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्याचं नंबर साध्य झालेला आहे. तर मी जास्त वेळ घेत नाही आणि तुमच्यासाठी म्हणून आता स्टेक होल्डर्स आहेत, सगळ्या गोष्टी पुष्कळशा माहिती आहेत. आणि हे सगळे जे स्टेक होल्डर्स आहेत ते आपापल्या क्षेत्रामध्ये खूप माहीर आहेत, म्हणून आम्हाला कॉन्फिडन्स आहे की जे आम्ही उद्या आमच्या लोकांना सांगू, आमच्या लोकांमधून लोकांपर्यंत जाणार आहे ते अत्यंत उच्च पद्धतीचं आणि प्रतीचं जे प्रॉडक्ट आहे की हे आपण घेऊन जाऊ, याचा मला खात्री आहे, विश्वास आहे. आणि मी आज सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की आज शिंदे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आपण याचं इनॉर्गरेशन करतोय आणि पूर्ण भारतामधले आमचे जे लोक आहेत ते याच्यामध्ये आता जुळले जाणार आहेत, याचं अनाऊन्समेंट शिंदे साहेब करतील. धन्यवाद. अधिक वेळ न दवडता अर्थात आजच्या दिवसाचे सत्कारमूर्ती आदरणीय अप्पासाहेब, मी तुम्हाला विनंती करेन तुमचे विचार सर्वांसोबत प्रकट करावेत. सर्वप्रथम आपण या हरित क्रांती मिशन 2चं आज लॉन्चिंग झालं याचं आपण जाहीर करू जोरदार टाळ्यांनी. भूमिसेवा ही कंपनी हेल्दी भारत आपल्याला घडवायचा असेल, आम्ही तसे औषधी विकणारे लोक मनुष्याचं, मानवाचं हेल्थ व्यवस्थित ठेवण्याचं काम करतो. परंतु आज आपल्याला प्रत्येक माणसाचं जर आरोग्य राखायचं असेल तर मला वाटतं तो काय खातो किंवा तो जे खातो ते धनधान्य, फळं, फुलं किंवा खाद्यपदार्थ हे सुद्धा हेल्दी असणं गरजेचं आहे. आणि मग ते जर आपल्याला हवं असेल तर आपल्याला ज्या जमिनीतून हे धनधान्य, फळं, फुलं निर्माण होतात, पिकतात, त्याला आरोग्यपूर्ण ठेवणं गरजेचं आहे. म्हणून या संपूर्ण मिशनमध्ये हेल्दी सॉईल, हेल्दी पीपल असा आपण नारा लावलेला आहे. आणि यामध्ये भारत सशक्त व्हावा असा ह्या हरित क्रांती मिशन 2चा एम एन ऑब्जेक्ट आहे. आणि मला वाटतं यामध्ये हाय मीडिया, डॉक्टर वाकेंच्या हाय मीडियाने फार मोठा याच्यामध्ये हिस्सा घेतला. ही जी काही मशीन वगैरे निर्माण होतं आहे त्याचं निर्माण हाय मीडिया करते. कारण जमिनीचं परीक्षणमध्ये हा एक अनुभव आहे की बऱ्याच लोकांनी हा प्रयत्न केला, परंतु 2 दिवस, 4 दिवस, 5 दिवस आणि त्याचा परीक्षण रिपोर्ट मिळत नाही. लोकांना जेव्हा आपण जमीन सुपीक करू किंवा ऑर्गॅनिक करू असं म्हणू, तेव्हा प्रत्येक माणसाला त्याची प्रूफची गरज आहे, पुराव्याची गरज आहे. त्याशिवाय तो त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवत. आणि म्हणून ही जी काही मशीन आली हाय मीडियानी, याच्यामध्ये आता एक 30 मिनिटाच्या मध्ये तुम्हाला व्हॉट्सअप तुमच्या मोबाईलवर रिपोर्ट मिळेल. ह्या रिपोर्टवर आता पुढे काय करून कसं काय, कोणत्या प्रकारे ही जमीन सुपीक करायला पाहिजे याचंसुद्धा टेक्निकल नॉलेज देण्याचं काम केलं आहे. आणि ह्या सगळ्या मीडिया हे करत असताना आता भूमिसेवानी जसं ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड टेकिस्ट हा आम्ही प्रमुख यामध्ये आहोत. हे खाली प्रमोशनसाठी, ज्याला मार्केटिंग म्हणू. कारण आज ऑल इंडिया हा काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरला आहे आणि 12.5 लाख लोक आमचे मेंबर आहेत. आणि भारताच्या प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये कोण्या कोपऱ्यामध्ये सुद्धा आमचा औषधी व्यापारी गेला आहे. आणि आज ह्या 142 करोड पॉप्युलेशन असलेल्या देशामध्ये मार्केटिंग करणं किंवा लोकांना समजून सांगणं किंवा लोकांना त्या फॅसिलिटी कुठे आहे ते सांगणंसुद्धा गरजेचं आहे. आणि मौखिक, तोंडी जे काही मार्केटिंग करण्याचा मानस आम्ही करतो आहे, यामध्ये मला वाटतं आमचे हाय मीडिया तसंच SME चेंबर, कारण यामध्ये जर कोणाला उद्या
काही आम्हाला फायनान्स लागला, पैसे लागले, लोन लागलं, तर बँकेकडनं आम्हाला VLE सेंटर लोन मिळवून देण्याची सुद्धा आपण याच्यामध्ये व्यवस्था केली. याच्यामध्ये आमचा मणिपाल ग्रुप हा आमचा मेंटर म्हणून काम करतो आहे, इन्व्हेस्टर म्हणून काम करतो आहे आणि तो आमचा प्रमुख आधारस्तंभ असेल. याचप्रमाणे वारकेम ऑर्गॅनिक स्वतःचं उत्पादन, हे जे काही ऑर्गॅनिक उत्पादन करण्याचं काम वारकेम स्वतः डॉक्टर वारके करतील. आणि त्याचप्रमाणे लॉसेटो ॲग्रिकल्चरल ड्रोन आम्हाला सप्लाय करणार आहेत. कारण याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की पिकांना जे काही आपण केमिकल देऊ किंवा पाणी देऊ किंवा जे काही देऊ, हे आता अद्ययावत अशा ड्रोनच्या रूपाने आपण दिलं तर मला वाटतं त्याचं जे काही टिपिकल किंवा जेवढं प्रमाण पाहिजे ते मेंटेन करण्याची हमी देते. आणि ऑसॉन ही आम्हाला अजून एक कंपनी याच्यामध्ये आम्हाला संशोधनाचं काम करणार आहे. त्यामुळे मला वाटतं चांगले आमचे साथीदार आहेत, पार्टनर्स आहेत. आणि मला आशा आहे की खऱ्या अर्थाने आपण हे प्रायव्हेट लेवलवर करतो आहे, सरकारी माध्यमातून प्रचार चाललो आहे. माननीय पंतप्रधानांनी पण आता अनाऊन्समेंट केलं आहे की हरित क्रांती देशामध्ये व्हावी. आजही आपण पाहतो की पंजाबसारख्या ठिकाणी हे जे काही केमिकल फर्टिलायझर्सचा उपयोग झाला आहे, त्यामुळे हरियाणामध्ये, पंजाबमध्ये कॅन्सरचं प्रमाण वाढत चाललं आहे दिवसेंदिवस. आणि कुठेतरी आपल्याला हेल्दी भारत बनवायचं असेल, आपली येणारी पुढची पिढीला सशक्त खऱ्या अर्थाने बनवायचं असेल, तर कुठेतरी आपल्या जमिनीलाच सशक्त बनवणं हे आपलं मेन उद्देश आहे आणि आमच्या कंपनीचा तो उद्देश आहे. आणि मी आज या सर्व आमच्या भागीदारांचं, पार्टनर्सचं सुद्धा धन्यवाद देतो. कारण आपण आज बघितलं की पर्यावरणाचा कुठेतरी तोल बिघडलेला आहे आणि त्यामुळे गेल्या वर्षी करोना आली. आता आपल्याकडे HMPV हा दुसरा एक व्हायरल आलेला आहे. काही लोक त्यामध्ये जायला लागलेत, लोक घाबरायला लागलेत आणि जनतासुद्धा घाबरते. अशा प्रकारच्या व्हायरलवर खऱ्या अर्थाने मात करायचं असेल तर कुठेतरी भारतामध्ये किंवा संबंध जगामध्ये पर्यावरणाचा जो तोल बिघडला आहे तो आपल्याला सरळ करावा लागेल किंवा व्यवस्थित करावं लागेल. आणि त्याची सुरुवात मला वाटतं या आपण जमिनीतून करू शकू, चांगली झाडं निर्माण करू शकू, चांगली पिकं निर्माण करू शकू. आणि मग अशा प्रकारचा मानवावर येणाऱ्या ह्या व्हायरल इन्फेक्शनमुळे येणाऱ्या महामारीमुळे येणाऱ्या लोकांना दुसऱ्या प्रकारच्यातही वाचू शकू. पुन्हा आज आपण सगळ्यांनी मिळून माझा वाढदिवस साजरा केला, 75वी साजरी केली. त्यामुळे मी माझ्या वतीने ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टच्या वतीनं, माझ्या AIFCD फार्मा लिमिटेडच्या वतीनं भूमी सेवाचं त्यांना मला धन्यवाद देतो. आणि असंच माझ्या वयाप्रमाणे भूमी सेवासुद्धा अशीच पुढे वाढो, 100 वर्ष जगो, 1000 वर्ष जगो, ह्याच शुभकामना देऊन थांबतो. नमस्कार, धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. अप्पासाहेबांनी जे म्हटलं त्याप्रमाणेच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजेच WHO म्हणतं की भारतामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण सध्या प्रत्येक 10 पैकी एका नागरिकामध्ये आहे. येत्या काळात म्हणजे 2025मध्ये हे प्रमाण प्रत्येक 8 पैकी एका नागरिकाला आणि पुढे जाऊन 5 पैकी एका नागरिकाला होण्याचं संभव दिसतं. या सगळ्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जर कारण कोण असेल तर आपण खात असलेलं अन्न. या अन्नाच्या माध्यमातून आपल्या शरीरात जाणारे केमिकल्स, अर्थात त्याच्यावरच उपाय आणि त्याच्यामध्येच क्रांती करण्याचं काम हरित क्रांती भूमी सेवाच्या माध्यमातून करत आहे. त्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. आणि मगाशी सर, जागुष्टे सर जसं म्हणाले तर खरंच हा प्रश्न आम्हाला पडतो. खरं लोकांनी आजारी पडावं असं वाटत असताना तुम्ही लोकांना सशक्त करण्याचं काम करता आहात, त्याच्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन हे झालंच पाहिजे. यानंतर आपल्यासोबत काही मान्यवर आज या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष रूपात उपस्थित राहू शकले नाहीत, मात्र त्यांनी ऑनलाईन व्हिडिओजच्या माध्यमातून आपल्याला शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत. सर्वप्रथम माननीय श्री चंद्रकांत साळुंखे, founder and president of SME Chamber of India. Shri Salunke has also founded many organizations to integrate small and medium enterprises from manufacturing and service sectors.
The objective of these organizations are to support and assist entrepreneurs from various fields for business and their growth and expansion. He consistently puts effort to resolve the issue and problems of the industry and SME sector. Mr. Salunke has represented various government committees, study groups, subcommittees, and panels to give inputs on industry, finance, and SME sector. We thank you, Mr. Salunke, although you're not here present with us, but we are truly grateful to you for your contribution and the support. For the next speech, I would like to invite Dr. Rajas Varke on the dais. Dr. Rajas Varke is an accomplished director of R&D in molecular biology and virology with over 16 years of industry experience, holding advanced degrees including a PhD in virology and immunology from University of Massachusetts, USA, and an MBA in family business management. He has been driving force behind innovative solutions in diagnostics, molecular biology, and sustainable agriculture. Over to you, Dr. Varke. आज अप्पासाहेब साहेबांचा वाढदिवस 75वा वाढदिवसासाठी आपण सगळे आलेलो आहोत. त्यांना 100 वर्ष जगावे आणि त्यांची हेल्थ खूप चांगली असावी ह्याच्यासाठीच मी देवाकडून प्रार्थना करतो. शरीर आणि मन दोन्ही स्वस्थ राहण्यासाठी 2 गोष्टी लागतात. एक म्हणजे आपण जे खातो, आपण जसं दिवसाचा आपली चर्या कशी असते, आणि त्याच्यानंतर आपण काम कसं करतो. सो खाणं हे खूप महत्त्वाचा भाग असतो आपल्या आयुष्यातला. भारतामधून तुम्ही जर बघाल तर एक्सपोर्टमध्ये रेसिड्यू फ्री आणि ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस हे 2x किंवा 4x दामामध्ये ते घ्यायला तयार असतात, कारण त्यांनी त्यांच्या देशांमध्ये, डेव्हलप नेशन्समध्ये गाईडलाईन्स बनवलेले आहेत की तुम्ही हे केमिकल्स वापरू शकत नाही. सो रेसिड्यू फ्री आणि ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस बनवण्यासाठी आणि ते विकत घेण्यासाठी जो खर्च लागतो ते भरायला तयार आहेत. आजच्या काळामध्ये भारतामधून आपण हे सगळं पाठवतो बाहेर. जेव्हा आपण हे दुसऱ्यांसाठी करतो, आपण हे स्वतःसाठी का करू शकत नाही, हा प्रश्न 1975मध्ये डॉक्टर वार्केंना आला होता हाय मीडियामध्ये. त्यांनी ते विषय उभा केला होता मायक्रोबायोलॉजीमध्ये. तेव्हा मायक्रोबायोलॉजीमध्ये भारतामध्ये बाहेरून सगळं सामान यायचं. आपण 1 ग्राम सोनं आणि 1 500 ग्रामची बॉटल मीडियाची, ह्याचा दाम सारखा होता. सो भारतामध्ये संशोधन होऊ शकत नव्हतं. सो हा प्रश्न भरपूर लोकांना भारतामध्ये मला वाटतं पडतो, आणि म्हणून अप्पासाहेबांसारखे किंवा डॉक्टर सरांसारखे आपल्याकडे दिवंगत लोक आहेत ज्यांनी आयुष्य दिलं त्यांचं भारताला स्वावलंबन करण्यासाठी. मी नशीबवान आहे की मी वारके खानदानामध्ये जन्म घेतला. आमचे आजोबा हे तीर्थंकर होते पंढरपूरला. सो भारताचा घरामध्ये खूप अभिमान. आणि चुकून त्या इंग्लिश, म्हणजे मी पूर्ण कथा सांगत नाही, तुम्ही पुस्तक वाचाल ना त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळं कळेल साहेब. नक्की पुस्तक वाचाल तर प्रश्न असा आला की एका बाहेरच्या माणसाने त्यांना सांगितलं की भारतामध्ये अशी अत्याधुनिक गोष्ट बनवू शकत नाही. मग त्यांच्या मनात हा प्रश्न पडला की भारताने जगाला सगळं दिलं 5000 वर्षांपूर्वी, जेव्हा ते काहीच नव्हते आणि आपण एवढे समृद्ध होतो, त्यावेळेला आपण सगळ्यांना शिकवलं. आणि आज हा इंग्लिश माणूस ज्यांनी माझ्यावरती 250 वर्ष राज्य केलं आणि आपण त्यांना हकलून टाकलं, तो मला सांगतो की हे शक्य नाही. आणि यातून जन्म झाला ह्या ध्येयाचा, मिशनचा. सो हायमेडी आणि वारकेम ही कंपनी नाही, आम्ही त्याला मिशन म्हणूनच धरतो. सो मी या मिशनचा एक भाग आहे आणि आम्हाला आनंद आहे की आम्हाला ही जी मिशन आहे AIOCD याच्यावर आम्हाला आणि सरांबरोबर आज जोडायला मिळत आहे. आपण किती पण काम केलं तरी टीमवर्क शिवाय कोणतीच गोष्ट या जगामध्ये शक्य नसते. मी जर म्हटलं की साहेबांनी जे आयुष्यभरात केलं ते मी करू शकतो तर ते खोटं ठरेल. आम्हाला जे जमतं म्हणजे टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट, त्या भागामध्ये आम्ही आमचा फोकस ठेवतो. आणि साहेबांचा जो फोकस आहे, जे रसातळापर्यंत त्यांनी काम केलं, ते जर एकत्र झालं
तर जी टेक्नॉलॉजी आम्ही भारतात बनवतो साहेबांबरोबर आम्ही ती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत नेऊ शकतो. आता आम्हाला याचं महत्त्व का आहे? कारण ज्यांनी ही कंपनी सुरू केली ते स्वतः शेतकरी आहेत. सो शेतीला निगडीत असे भरपूरसे प्रश्न आहेत जे आम्ही जन्मापासून बघतोय आणि त्यांना इच्छा होती की गावाकडे काहीतरी परत व्हावं. सो हे जे प्रोजेक्ट आहे याच्यासाठी आम्हाला एक म्हणू शकतात की इच्छा आहे आमची खूप वर्ष झाले की पूर्ण देशामध्ये शेतकऱ्यांना कसं वर आणावं. आपण शेतकऱ्यांना आम्ही सकाळी आता बोलत होतो, शेतकऱ्यांना आपण ऑलवेज म्हणतो जास्ती उत्पादन करा, पण शेतकऱ्यांनी जास्ती उत्पादन केलं की त्याचाच दाम उतरतो. शेतकरी कधीच कमवत नाही त्याच्यामुळे. सो हे कसं बदलावं त्याच्यासाठी शेतकरी जो माल बनवतो त्या मालाचा जो स्टॅम्प आहे तो बदलायला पाहिजे. म्हणजेच ऑर्गॅनिक जर आज शेतकरी बनवू शकला तर जास्ती बनवायच्या ऐवजी त्याच जेवढं जे तो वांगी किंवा ऊस किंवा केळं किंवा कोणतंही उत्पादन जे बनवतो त्याचं त्याला जास्ती मोल मिळेल. आणि भारताला जर उद्या जाऊन प्रगतिशील डेव्हलप नेशन जर बनवायचं असेल तर शेतकऱ्यांशिवाय तर होऊ शकत नाही आहे. ते तर 60% ऑफ अवर पॉप्युलेशन शेती आहे आणि भारताचं मी म्हणेल ते ॲक्च्युली स्ट्रेंथ आहे. तर त्याला आपण कसं आपण पुढे नेऊ शकतो याच्यासाठी आमचा भरपूर वर्षाले संशोधन चालू आहे. त्याच्यातून वारके मॅग्रीचा जन्म झाला. हायमेडियामध्ये आम्ही ऑलरेडी प्रत्येक सायंटिस्टबरोबर काम करतो. त्याच्यातून तुमच्याकडे ही सॉइल टेस्टिंग किट आहे. त्याच्यातून जे तुम्हाला उत्तर मिळेल त्या उत्तरातून तुम्ही काय द्यायला पाहिजे हा पुढचा प्रश्न. आता मी एज्युकेशननी कोइन्सिडेंटली फार्मसिस्ट आहे. फार्मसीमधून मी बायोटेकमध्ये गेलो म्हणून औषधं हे मी आधी शिकलो. सो मला बरोबर कळतं आहे कारण एका बाजूला औषधं असतात, दुसऱ्या बाजूला असते की आपण स्वस्थ राहावं. स्वस्थ राहिले तर औषधं घ्यायची गरज पडत नाही. पण मी याच्याकडे वेगळ्या प्रकारे विचार करतो. हा मे बी 10-20 वर्षांपूर्वी विचार केला जायचा. आजच्या काळामध्ये फार्मास्युटिकलमध्ये सगळ्यात मोठा बिझनेस हा प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन आहे. म्हणजे कसं आजारी नाही पडावं हे आता फार्मास्युटिकल कंपन्या शिकवतात सगळ्यांना. तुमच्याकडे लेक्चर असतात, तुम्हाला ट्रेनिंग असतं, हॉस्पिटल्सवर करतात ते. कारण इतके आजारी झाले आहेत लोक, म्हणजे पॉप्युलेशन इंडियाचं खूप आहे. सो एवढे सुद्धा आजारी लोक असून काही फायदा नाही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीला. सो प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन इज द न्यू थिंग इन फार्मास्युटिकल. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण सांगू शकतो की तुम्ही जर हे खाल्लं तर तुम्हाला हे आजार होणार नाहीत तर नक्कीच मला वाटतं त्याला प्रोत्साहन मिळेल. आणि इट कॅन असोसिएट विथ मेडिसिन. असं नाही की मेडिसिन आणि ऑर्गॅनिक हे सेपरेट आहे. ॲक्च्युली हे एकत्र मिळून चालतील पुढे. आणि भारताला जर पुढे जायचं असेल तर आजारमुक्त किंवा नियंत्रणमध्ये असणं हे गरजेचं आहे. सो आमचा पूर्ण तुमच्याबरोबर राहायचा आम्हाला भरपूर आनंद आहे की तुम्ही आम्हाला याच्यामध्ये सहभागी केलं. आणि आम्ही तुम्हाला आश्वस्त करतो की हायमेडिया आणि वारकेम दोघांकडून जे तुम्हाला मिळेल आम्ही तुमच्याबरोबर चालू. असं नाही की दिलं आणि निघालो. उलट आम्ही तुमच्या पुढे राहायचा प्रयत्न करू. शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही पुढे असू. जर त्रास झाला तरी असू, उत्तर मिळालं तर तुम्ही पुढे असा. सो आमचा असा प्रयत्न असतो कारण की आम्हाला लॅबमध्ये राहायला आवडतं. सो प्रॉब्लेम आला की असं वाटतं की ते आमच्यामुळे झालं आहे. पण जर ऑब्व्हियसली ते सक्सेस असेल तर ते तुमच्याशिवाय शक्य नाही. सो मी माझे शब्द संपवतो याच्यावरती. अजून काय बोलायचं? धन्यवाद आणि परत 75व्या वाढदिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर वारके. आणि यानंतर हाय मीडियाच्याच वतीनं त्यांचेच आणखी एक सदस्य श्री मनीष राऊत यांना मी विनंती करेन कृपया त्यांनी मंचावर यावं आणि आपले विचार मांडावे. धन्यवाद. ॲक्च्युली मी एक मेसेज घेऊन आलो आहे सर तुमच्यासाठी. राजा सर इथे आलेलेच आहेत. आमचे अजून एक डायरेक्टर डॉक्टर विशाल बारके येऊ शकले नाही काही पर्सनल कारणामुळे. पण त्यांच्या तुमच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्हाला असंच परमेश्वर उदंड आयुष्य देऊ. आणि आमच्याबरोबर तुम्ही ही जी मुवमेंट चालू केली आहे मिलिंद सरांनी आणि AICDने आणि मणिपाल ग्रुपने, ही अशीच पुढे जात राहो आणि तुमचे आशीर्वाद आम्हाला लाभत राहो.
आणि प्रगती करत आहोत. आय थिंक मला एवढंच बोलायचं होतं. आणि ही जी मुवमेंट आहे मिलिंद सरांनी आय थिंक सकाळी 6 वाजता आपण स्टार्ट केलेली आणि खूप छान प्रकारे त्यांनी एक त्याला शेपअप केलं. एवढे चांगले स्टेक होल्डर्स ह्याच्यामध्ये आलेले आहेत. आणि जो फार्मरचा आणि जो एंटरप्रेनर आहे ह्याच्यामधून जेवढे उद्योग उभे राहणार आहेत, आय थिंक त्याच्यासाठी हे खूप गरजेचं होतं की या सगळ्या स्टेक होल्डरना एकत्र करून ही वाटचाल पुढे चालवावी. सो थँक्यू. आणि सर परत तुम्हाला शुभेच्छा. थँक्यू सर. यानंतर मी मंचावर आमंत्रित करू इच्छिते CA Deepak Zawar, our FPC specialist, a chartered accountant by profession and a visionary for farmer empowerment. Our director has spearheaded the establishment of over 500 farmer producer companies, and it's a big deal in itself, sir. By enabling farmers to unite, pool resources and thrive collectively, he has revolutionized agricultural landscape. Over to you, sir. सभी को नमस्कार. दीपक जवार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. अभी मैं कोई इनकम टैक्स या GST की आपसे बात करने नहीं आया हूँ. अभी हम फार्मर सॉइल टेस्ट और बाकी इस पर बात करेंगे. शिंदे साहब, आपको जन्मदिन की पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ से शुरुआत करता हूँ. 2 मिनट का हम आपसे समय लेंगे. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ, लेकिन कर्मा से एक फार्मर्स जो घर है मेरा, फार्मिंग लैंड और बाकी सब है. दिवाली पे दिवाला कैसे निकलता है ये हमने घर पे बहुत करीब से देखा है, और वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि हम आगे इसके ऊपर अच्छे से कैसे काम कर सके. तो एक मेरा बड़ा सिंपल सा काम मैंने इसमें शुरू किया है कि एक फार्मर को हम एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएं. कोई भी एक अगर फार्मर है, अगर हम उसको एंटरप्रेन्योर बना सके, उसकी हम आजीविका चला सके. उसके घर के सामने ट्रैक्टर तो खड़ा हो ही सकता है, लेकिन उसके घर के सामने हम कार कैसी खड़े, ये ड्रीम लेकर मैं सामने चला. अब ये ड्रीम लेकर जब सामने चला तो कई साथी मिलते गए. मिलिंद देशपांडे सर, अभी अप्पा साहब भी हमारे साथ में उसमें जुड़े ही है. तो एक सिंपल टर्निंग है कि हम फार्मर को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाएं, और उसके बीच में फार्मर और एंटरप्रेन्योर के बीच में जो एक दीपक झंवर का रोल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम थोड़ी देर बाजू रहने दे रहे हैं, वो एक कंडूट पाइप का, एक जोड़ पाइप जो होता है, उतना ही मेरा काम है. इसके ऊपर का मेरा काम नहीं है. तो फार्मर को हम एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनाएं. जो उसके पास में इनपुट मटेरियल है, मान के चलते हैं हम सभी जन दाल खाते हैं, तूर चना सभी दाल खाते हैं. वो तूर उगाता है, लेकिन तूर बेच देता है मान के चलते 4,000 5,000 मैक्सिमम 6,000 के भाव से. अगर हम वही दाल परचेस कर रहे हैं 140-150 रुपए किलो से, तो देयर इज एन डबल का डिफरेंस. हम बोलते हैं भाई आप एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दीजिए, आप एंटरप्रेन्योर उसके अंदर बन जाइए. अब उसके लिए अभी हमने सारे बड़े नामों के साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AIOCD है, बाकी हाई मीडिया है, वारकेम है, बाकी सारे ग्रुप्स है, सारी टीम है. मैं भूमि सेवा के साथ में जुड़ा हूँ, एज एन टीम उसके साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन फार्मर्स की टीम नहीं है. तो फार्मर भी अगर जब टीम में काम करेगा तो ज़्यादा सशक्त होगा. बड़ा सिंपल है कि हमने बचपन से सुना है कि अगर एक लकड़ी रहे तो टूट जाती है. हमने दादी माँ के किस्से हमारे सबसे सुने ही है. और पूरा गट्ठा रहे तो नहीं तोड़े. तो एक टीम वर्क में शक्ति होती है. इस टीम वर्क में ही सारा काम होता है. इसके पहले हमारे राजेश सर ने भी वही बताया कि टीम इज एन पावर टू अस. तो उसी के लिए हमने एक टीम जोड़ने का काम शुरू किया विद एन कंसेप्ट ऑफ अ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है. जैसे मैंने एक बताया कि एक लकड़ी और अनेक लकड़ी के साथ में हम जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं. उसी के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक कंपनी एक्ट में दिया गया है 2013 में कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में हम 10 फार्मर्स का ग्रुप बनाकर हम एक कंपनी बनाएं, और उसके साथ में हम मल्टीपल फार्मर्स उसके साथ में जोड़ते चले, जो हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स. मैं उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा. अब क्वेश्चन ये आएगा कि वाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुड बी. कि अगर जैसे मान के चलते हैं अमिताभ बच्चन, सभी जन अमिताभ बच्चन जी को जानते ही है. अमिताभ बच्चन जहाँ से खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है, बॉलीवुड. उसी तरह से हम अप्पा साहब को देखें तो फार्मास्यूटिकल लाइन्स के अंदर इन्होंने इतना बड़ा योगदान किया है. उसी तरह से फार्मर प्रोड्यूसर्स जो कंपनी हमारी बनी है, तो जहाँ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी रहेगी वहीं से हमारा जो फार्मर रहेगा वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, और उसी के साथ में वो सुजलाम सुफलाम की तरफ उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर वो काम करेगा. तो FPC जो है वो एक कंपनी एक्ट में और बाकी सारी चीज़ें बनी है. और फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी के साथ में जितनी भी आप गवर्नमेंट डिविजन्स है, या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, या गवर्नमेंट की ग्रांट है, यू नेम एनी डिवीजन, यू नेम एनी ग्रांट, वो सारी की सारी स्कीम्स और ग्रांट्स फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी के लिए अवेलेबल है. तो
टेक एन एग्जाम्पल कि कपड़ों की सेल लगती है, ज्वेलरीज की सेल लगती है, बाकी सभी सेल्स लगती है, तो हम देखते हैं एक पे एक फ्री, शर्ट पे एक फ्री। अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में हम जाते हैं तो एक ट्रैक्टर पे एक ट्रैक्टर फ्री मिलता है, देयर इज 60% सब्सिडी ओवर इट। तो ये जितनी भी सारी मशीन्स है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे वेयर हाउस है, सारे कन्वेक्शनल्स है, सारी मशीन्स है, जो भी इंडस्ट्री आगे जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री और जो भी लगानी है विद इन फार्मर बेस, वो सारी की सारी फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी के साथ में और भूमि सेवा कंपनीज के टीम्स के साथ में हम वो पूरी करने की एक कोशिश कर रहे हैं, एक पहल कर रहे हैं। उसका साथ आपका ही उसी के साथ में, और आगे ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। इसी के साथ में मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और बिल्कुल ही पैसों की बात फार्मिंग में कैसी लाई जाए ये सीए से बेहतर कोई नहीं बता सकता, जो आपने बहुत ही खूबी से किया है। यानंतर मी मंचावर आमंत्रित करू इच्छिते श्री विशाल लंगोटे. Mr. Vishal is an agronomy expert. He left a successful engineering career to embrace agriculture, inspired by his father's passion for farming. With a focus on soil health and organic farming, he empowers farmers to adopt a sustainable practices, ensuring healthier soil, better yields, and environmental preservation. His vision is to create a future where agriculture supports thriving ecosystem and nourishes communities with safe, healthy food. He believes when we nurture the soil, we nurture life itself. Welcoming on stage, Shri Vishal Langote. सर्वप्रथम आदरणीय आप्पासाहेबांना 75व्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. मी मंचावर उपस्थित सर्वांचं स्वागत करतो. तसंच मी इथे जमलेल्या सगळ्या भूसेवकांचं सुद्धा स्वागत करतो. मी भूसेवक यासाठी आपण म्हणतोय, एक नोबल कॉज घेऊन आपण इथे आलोय. भूमी सेवाच्या एका अम्ब्रेलाखाली आपण सगळे लोक इथे गॅदर झालोय आणि आपला सगळ्यांचं एम एकच आहे की आपल्याला या काळ्या मातीची सेवा करायची आहे. कुठेतरी ढासळत चाललेला मातीचा दर्जा आपल्याला चांगला करायचा आहे. मुळात आई शेतकरी, वडील शेतकरी म्हणून नाळ शेतीशी जुळल्यामुळे कुठेतरी इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड IT कल्चरला मागे सोडून ती शेती मला सतत ओढायची का तू इकडे ये, असंही म्हटलं तर चालेल, स्वप्नात यायची का तू माझ्याकडे ये. मग त्याच मध्यंतरी कोरोना आपला इथे मध्ये आला आणि मला माझ्या स्वतःच्या घरच्या शेतीमध्ये काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळाली. आणि मुळात नाळच शेतीसोबत जुळली असल्यामुळे, मुळात नाळ शेतीशी जुळल्या असल्यामुळे मी त्या शेतीकडे अगदी ओढत गेलो आणि एका वेळेनंतर हे मनाशी पक्क केलं की आता आपल्याला शेतीसोबतच एकनिष्ठ होऊन पुढे काहीतरी करायचंय. मग सगळ्यात मोठा प्रश्न हा होता की जी शेती माझे वडील करायचे ते शेती आता माझे वडील करत नव्हते. मी त्यांना तो प्रश्न केला. मी म्हटलं, मी तुम्हाला पाहिलंय की तुम्ही शेणखतं, कोंबडी खतं सगळ्या गोष्टी शेतीमध्ये टाकायचे, तुम्ही जमीन अगदी खोल नांगरून काढायचे, तुम्ही रासायनिक खतं अगदी नच्या बरोबर वापरायचे आणि त्यामध्येही तुम्ही भरमसाठ उत्पन्न घ्यायचे. पण आज तुम्ही ते करत नाही आहात. आज तुमच्याकडे 50 एकर 60 एकर शेती आहे म्हणून ठीक आहे, पण जे अल्पभूधारक आहेत ते आज कुठेतरी मागासच चालले आहेत, म्हणून शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. मग त्या 2 वर्षात मला संधी मिळाली आणि मी त्या संधीचं सोनं केलं. त्या 2 वर्षात शेतीमध्ये नेमकं काय रिझन आहे या सगळ्या गोष्टी मागं, तर कन्क्लुजन एक आलं, माती. आपल्या मातीची हेल्थ एवढी ढासळत चालली आहे आणि आपण आज या तळाला आलोय की आपण जर ही प्रॅक्टिस कंटिन्यू ठेवली तर येणाऱ्या 5 वर्षात राजस्थान, महाराष्ट्रामध्ये शिफ्ट व्हायला वेळ लागणार नाही. आपल्या मातीचं वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही. मग मातीचं वाळवंट जर होऊ नसेल द्यायचं तर या मातीसाठी आपण काहीतरी करायला हवं. या मातीला आपण जगवायला हवं. मग तिला जगवायचं कसं, काय कसं, तर याच प्रवासामध्ये आदरणीय मिलिंद सरांसोबत काम करायची संधी मला मिळाली आणि याच संधीचं सोनं करत आज आम्ही भूमी सेवाला या एका लेवलवरती घेऊन आलोय. आमचा सगळ्यांचा उद्देश हाच आहे आणि मी आपल्याला सुद्धा हाच एक काय म्हणेल त्याला एक ध्येय देईल की आपल्याला या मातीच्या सुधारणामध्ये जे काही आपल्याला कार्य करता येईल ते आपल्याला करायचं आहे. रासायनिक गोष्टींना मागे सोडून आज आपल्याला कुठेतरी ही सगळी परिस्थिती बदलण्याची एक संधी दिली आहे. आणि जसं सरांनी म्हटलंय की आम्हाला आजारी पडलेले लोक जास्त आवडीचे, पण आज आम्हाला हेल्दी लोक जास्त आवडीचे. या सरांच्या ध्येयाला सोबत घेऊन कुठेतरी आपण आज पुढे जायला हवं आणि त्यासाठीच आपण इथे जमलोय. मी आदरणीय मिलिंद सरांना, आप्पासाहेबांना आणि संपूर्ण टीमला मनापूर्वक शुभेच्छा देतो आणि स्वतःला खूप
फॉर्च्युनेट समजतो की या काळ्या आईची सेवा करण्याची संधी मला इथे मिळाली. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद विशालजी. आणि तुम्ही वापरलेला शब्द खरंच सर्वांना विचार करायला भाग पडतो. इथं जमलेला प्रत्येक व्यक्ती हा खऱ्या अर्थानं भूसेवक आहे. खूप खूप धन्यवाद. वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पीकर, मिस्टर संदीप जायसवाल. Shri Sandeep Jaiswal is the Managing Director of Ossan Laboratories India Private Limited. With over 21 years of experience as a group of CFO and CEO across Europe, Middle East, and Africa, this dynamic leader has built a reputation for turning distressed businesses into thriving ventures. His expertise spans IT, satellite, agriculture, power, fintech, automobile, manufacturing, and artificial intelligence. I think nothing more left than this. Showcasing his versatility and strategic acumen. With a deep commitment to maximizing stakeholders' value, he consistently delivers turnarounds, high growth, and sustainable success. Leveraging his expertise in finance, leadership, and operational excellence, I invite Mr. Jaiswal to please be on stage and guide us with your words. A big round of applause for Shri Sandeep Jaiswal. नमस्कार. हैप्पी बर्थडे अप्पा साहेब. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मेरे ज़्यादातर अपने कैरियर भारत के बाहर ही रहा है. अभी 2 साल हुए मैं भारत आया हूँ. और भारत के बाहर जो किसानों का जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है. सारे किसान मतलब सब पैसे वाले हैं. अमेरिका में जितना सारे पॉलिटिकल फंडिंग होते हैं वो किसान पॉलिटिकल रिपब्लिकन को या डेमोक्रेट को वो देते हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी यही है. पर भारत के जो किसान का छवि है वो दुखियारा है, वो सुसाइड करता है. मतलब बहुत, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा. और मैं दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक तो वहाँ मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. तो सारे ज़िंदगी में मैंने मेरा ये रहा कि किस नई बिजनेस को बढ़ाया जाए और शून्य से वैल्यू बढ़ाया जाए. मतलब ज़ीरो से हम वैल्यू बढ़ाएं. ठीक है, पैसे लेके तो सभी कमा सकते हैं, किंतु बिना पैसे से हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमने किया. सो मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप बाहर में किया है. पर मैं ऑस्ट्रेलिया में था और हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़े हैं, रॉबर्ट वाटसन और केविन जॉयस. और हम लोगों ने पागलों के जैसे पैसे खर्च करके कुछ बनाया. और हम लोग बहुत पैशनेट है इस चीज़ में. और जैसा हरित क्रांति का जो ऑब्जेक्टिव है देशपांडे जी से मिला और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि वो भूमि सेवा की बात कर रहे थे. और मेरा जो सारा एक्सपीरियंस भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में है और यूएस में, यूरोप में, वहाँ एक चीज़ मैंने देखा, जो ज़मीन की जो कार्बन सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है. जब तक आपके मिट्टी की कार्बन की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, आपका कृषि नहीं हो सकता है. मैं तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानता हूँ. सो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में हम लोग 3 जन मिलके हम लोग काम किए. हम लोग तीनों डायरेक्टर 60 के ऊपर है. करेक्ट. और हमने जो ये इनोवेशन किया और इतना महत्वपूर्ण ये आविष्कार हुआ कि अमेरिका की एक केमिकल कंपनी हमारे पास आई और हमारे इस आविष्कार को बेचने के लिए 350 करोड़ रुपए का ऑफर दिया. और फिर भी रॉबर्ट वाटसन ने, जो कि 75 साल के हैं, वो ने कहा कि इसको नहीं बेचना है. मैंने क्यों? मैंने कहा कि हम लोग सब 60 के ऊपर हो गए हैं, पैसे वैसा हो जाएंगे तो अभी बाकी का लाइफ रिटायर्ड हो जाएगा. उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन इस अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया हमारी कंपनी को, इसको जाके ये अलमारी में रख देगा और ये कभी आने वाला नहीं है. तो ऐसा क्या इनोवेशन है, क्या साइंस आविष्कार किया कि लोग इतने पैसे लेके हमारे पास ऑफर करने आ रहे हैं. तो हम कृषि में हमारा जो मेन काम है वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, मिट्टी में कार्बन को बढ़ाना है. तो और हम जो भी कर रहे हैं वो मिट्टी को छू भी नहीं रहे हैं और हम फिर भी उसमें कार्बन बढ़ा रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने देखा पौधे का खाना कहाँ बनता है, वो पत्तियों में बनता है, फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या चाहिए? सनशाइन चाहिए, सूर्य की लाइट चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल उसमें है, और CO2 चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग, हमारा आविष्कार जो है वो पत्तों में हमने स्टोमेटा को खोला ज़्यादा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया। हम लोगों ने हम लोग रिसर्च में देखा कि पत्तों में 40% तक ही फोटोसिंथेसिस होता है। हम उसको कैसे 60, 80, 90, 100% कर सके, तो हम लोगों ने एक स्प्रे तैयार किया, वहाँ रखा हुआ है क्रॉप बायोलाइफ। उस स्प्रे से सारे स्टोमेटा का खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब मैं बताऊं, एक गरीब देश और एक अमीर देश में एक बहुत बड़ा चेंज है मिट्टी, विच इज़ कार्बन। ऑस्ट्रेलिया में आमतः 1% से 3% तक का कार्बन है, ठीक है। भारत में जब हम लोग यहाँ आए और हम करीब 2 साल से 2.5 साल से काम करें महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में, हमारे ज़मीन में कार्बन सिर्फ 0.2-0.3% है। हम लोगों ने एक बार के स्प्रे से 54% एक साइकिल में कार्बन बढ़ाया है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे DCM श्रीराम है, यहाँ पे वसंतदादा पाटिल इंस्टीट्यूट है, उन सबों ने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है और बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम कार्बन को बढ़ाते हैं तो उपजाऊ, तो हम एक साइकिल में हम 40 से 50% तक हम लोगों ने क्रॉप की यील्ड को बढ़ाई है। ये मतलब ये डेटा बेस्ड है, मैं मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। 20 से 30 से स्टार्ट करके 40 पे 50% हमने क्रॉप यील्ड बढ़ाई है, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ाई है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई फार्मर के इनकम को दुगना करना, तो दुगना कैसे होगा? 2 ही चीज़ से हो सकता है, एक तो उसका इनकम बढ़ना चाहिए और एक उसका कॉस्ट घटना चाहिए, करेक्ट। तो जैसे ही क्रॉप बायोलाइफ को इस्तेमाल करेंगे आप, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्रॉप यील्ड तो बढ़ेगी, और हर क्रॉप में ब्रिक्स बढ़ती है। ब्रिक्स मतलब उसकी न्यूट्रिशन, शुगर वैल्यू, ये सब बढ़ती है, तो क्वालिटी भी बढ़ती है। यानी क्वांटिटी और रेट दोनों करके इनकम आपका बढ़ गया। और गुजरात के आनंद यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके पाया है कि अगर आप क्रॉप बायोलाइफ को यूज करोगे तो 50% तक केमिकल फर्टिलाइजर को आप कम कर सकते हो, यानी आप और भी इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हो। हमने ये भी देखा है कि जब ब्रिक्स मतलब शुगर की क्वांटिटी पौधों में बढ़ती है तो पेस्ट जो होते हैं उनको शुगर हजम नहीं होता है। तो पेस्ट को शुगर जब हजम नहीं होता है तो पेस्ट आते नहीं है। जब पेस्ट आएंगे नहीं तो पेस्टिसाइड चाहिए नहीं, यानी हमारे इनपुट कॉस्ट कम। तो फार्मर की जो डबल इनकम की बात है, वो हम लोग कहते हैं फार्मर की इनकम डबल करो। कैसे डबल करेंगे? कुछ तो उसको फॉर्मूला चाहिए। तो हमने कहा क्वांटिटी यानी क्रॉप यील्ड, रेट यानी क्वालिटी, उसकी सेल वैल्यू बढ़ गई, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, और हर साइकिल में हमने कार्बन को बढ़ाया है। और ये जो कार्बन है ये सेलेबल कार्बन है, यानी इस कार्बन को आप कार्बन क्रेडिट के हिसाब से आगे बेच भी सकते हो। कार्बन क्रेडिट में विदेशों में बहुत काम हो रहा है, भारत में भी अब स्टार्ट हो गया है। और हमारी जो कार्बन है इसको ग्रीन कार्बन कहते हैं। आज भी इसको 1 टन का कार्बन आप $60 से $70 में बेच सकते हैं। और आने वाले समय में IMF ने कहा है $250 तक ये कार्बन क्रेडिट बिकेगा पर टन। एक मैं मोटा मोटा बात बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर अगर आप ग्रेप्स लगाते हैं उसमें 19 टन का कार्बन हम बढ़ा सकते हैं एक साइकिल में। अब 19 यानी 19 इंटू 82 रुपीज़ जो भी कर लीजिए, जो वैल्यू है वो आप देख लीजिए, यानी 19 टन्स का कार्बन आपको क्रेडिट। यानी आपने ग्रेप्स तो बेचा, जमीन को अच्छा भी किया, कमाया भी अच्छा, इनकम भी, कॉस्ट भी अपने इनपुट कम किया, और साथ साथ आपने कार्बन क्रेडिट भी लिया। मेरा एक हिसाब है कि भारत में जो कार्बन क्रेडिट का बिजनेस है वो $1 मिलियन में नहीं है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है। वो अरबों में नहीं है, वो खरबों में है।
तो अभी जब मैं लोगों से बात करते हो लोग हंसते भी हैं, बोलते टू गुड टू बी ट्रू। पर ये सारे काम लास्ट 2 साल में हम लोगों ने किया है, डेटा एनालाइज किया है और हम लोगों ने प्रूव किया है। और भारत में एक दूसरे दिल्ली की एक कंपनी के साथ जुड़ के हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और अभी मिलिंद जी से फॉर्चुनेटली हम मिले, हमारे बात से हमने देखा कि हमारे दोनों की ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो भूमि सेवा कर रहे हैं, हमने सेवा करने के लिए क्रॉप बाय लाइफ उनको दे दिया। इससे आप भूमि की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं और किसानों को आप रिच बना सकते हैं। किसान को बिजनेसमैन होना चाहिए ना, उस ठीक है, उसको सब्सिडी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, ठीक है। तो ये ऐसा करके हम इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है और हम चाहेंगे कि हम मतलब बहुत लार्ज स्केल में हम काम करें। हमने वो AICD आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है 12,50,000। तो मैंने अपने ऑस्ट्रेलियंस को बताया कि क्या छोटे छोटे बिजनेस करते हो, आप भारत में आओ। तो उन्होंने भी, हाँ, छोटा सा तो देश है, हाँ, कितना उसका 3 करोड़ या 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है, उतने तो हमारा मुंबई पुणे में हो जाता है। हाँ करेक्ट। हाँ, तो हम बोले ऑस्ट्रेलिया छोड़िए और इसके यहाँ आइए। तो उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, मेरी बातों से कन्विंस हो गए, इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ क्रॉप बाय लाइफ के अलावा हम लोगों ने एक और प्रोडक्ट को इजाद किया है, मिरेकल एवरीडे। वो उसको यहाँ हमने डिस्प्ले नहीं किया है। भारत में 30% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, यानी आप जो उगाते हैं उसका भी 30% ऐसे ही खराब हो जाता है, ठीक है। कोल्ड चेन हमारे पास है नहीं पूरी तरह से। हम लोगों ने एक ऐसा स्प्रे इजाद किया है, ऑर्गेनिक है, जिससे फूड के शेल्फ लाइफ को इजाद हो जाता है। अब जैसे वेजिटेबल्स है, साग सब्जी है, धनिया है, टमाटर है, इनको अगर आप स्प्रे करते हैं तो जितना उसकी लाइफ है 2x या 3x आप बढ़ा सकते हैं विदाउट कोल्ड चेन। यानी उतनी लॉसेस को, जो चीज़ सड़ जा रही है, गल जा रही है, जो मार्केट में नहीं आ रही, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों ने डेयरी में भी काम किया और वेटनरी में भी काम किया है। आगे चल के शायद हम वेटनरी का भी काम आपके नेटवर्क के साथ करेंगे। तो एक नया चीज़ है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, गुड विशेस चाहिए कि हम लोग जोर से इसको काम करें, उसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर जायसवाल। और CA से बेहतर पैसा कोई नहीं समझा सकता, तो आपने सिर्फ इंडियंस को ही नहीं तो फॉरेनर्स को भी ये समझा दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीकर की ओर। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज फाउंडर एंड CEO ऑफ लेसको टेक्नोलॉजीज मिस्टर एबल मैथ्यू। He is a passionate innovator with a background in mechanical engineering and plastic technology. His career began as a process engineer at an agri-tech startup incubated at IIT Madras, followed by a leadership role at a drone company where he pioneered drone-based sports broadcasting. He also played a key role in developing advanced composite airframes. Abel's entrepreneurial journey led him to establish Leseco Technologies. Under his leadership, the company has become a pioneer in drone as a service in India, delivering scalable and sustainable solutions for industries like renewable energy, power, inspection, and agriculture. With over 15,000 MW of renewable assets under monitoring and inspection, Leseco, in collaboration with Bhumi Seva, will now deploy drones for agriculture across India, with a strong commitment to supporting farmers and the agriculture sector. Focused on sustainability and innovation, Abel envisions positioning Leseco as a global leader in the drone technology industry. A big round of applause and a warm welcome to Mr. Abel Matthew. Good afternoon, one and all. Thanks for this opportunity. Appa Sahib sir, happy birthday first of all. And we are Leseco Technologies. We are a drone tech company. We provide drone as a service. We are already operating in the renewable space. We are one of the largest in terms of the capacity we handle. We handle closely to around 15 gigawatt of assets pan India. So me being a plastics engineer by education and completely shifted to agriculture. I started my career working
on agri-tech company because after studying plastics is when I really realized that that is not the field which I am very closely associated to. So sustainability is something which we always wanted to work, and agri is a sector, or farming as a whole is always overlooked, and there is no solution which is a one stop or all solutions put together. And we tried working with agri in Hosur and Nilgiris using drones, but we felt that a single company just with drones we cannot solve a larger problem. So we were sticking with renewables, and we wanted to have a right set of collaboration where we have other stakeholders in place who have the right set of resources and knowledge. So that is when I was talking to Milind sir, and we were also very pertinent about certain things, because everyone were asking why drone as a service, because selling the drone as a product is a much easier thing to do as a startup or as a company that gives more revenue. But end of the day, contributing to the farming or the community is much more of our ideology. And there are so many companies which gives drone as a product. We did a research, and almost 80% of the farmers are not using the drone, or there is so much nitty-gritties which the farmers are not aware of. So that is when we took a decision that we are not going to go as a product, rather we will give it as a service, so that the solution is always accessible to the farmer. And we also strongly believed that any technology, if it is not accessible or not really affordable, particularly a sector like farming, it is not going to really help anyone. So, and also there are so many false narratives about this technology, saying that drones can solve everything in a one single shot. There are so many things that the farmers are being wrongly taught. For example, drones can do a follicular application, but there are so many things where even root level things are given on drones. So we wanted to take those narratives out of the ecosystem and focus on what really is needed for the crop, and educate the farmer in the right way, so that it really helps in overall farming as well as in yield increase. So that is what we wanted to do. So we were discussing with Milind sir quite some time. I think for any right thing to happen, when the intentions are right and the right set of people are there, anything is possible. Sir, what you have done through AIOCD is phenomenal, and I think we are the next generation. We seek your blessings and hope that we would justify what we have done so far. Thank you so much, sir. Thanks for the opportunity. थैंक यू सो मच मिस्टर एबल मैथ्यू। इंजीनियर्स ये इकलौती ऐसे लोग हैं जो हर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इट। इसके बाद मैं मंच पे हमारे अगले स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगी। I'd like to invite Dr. Praveen on the stage. Dr. Praveen Merapalli, a highly accomplished agriculture scientist, holds a PhD in agriculture botany with extensive expertise in organic fertilizers, pest management, and sustainable farming practices. Starting as an assistant professor at an agriculture college, he transitioned to field of R&D at Vacuum Biotech, Mumbai. He has been guiding farmers towards improved agriculture methods. An avid researcher and a writer, Dr. Praveen has published over 12 research papers, authored 6 international books, and contributed 25 Marathi and 12 English articles to the various publications. Please put your hands together for Dr. Praveen.
सर्वप्रथम आदरणीय अप्पासाहेबांना जन्मदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मंचावर उपस्थित आणि मंचासमोर बसलेले सर्व मान्यवर सर्वांना मी नमस्कार करतो. आमचे डायरेक्टर सर डॉक्टर राजेश वारके साहेबांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे, परंतु अगदी थोडक्यामध्ये जास्त वेळ न घेता कंपनीचा कन्सेप्ट किंवा प्रोडक्टचा विषय मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे. वारकेम बायोटेक ही हायमीडियाप्रमाणे इनोव्हेशन घेऊन कृषी क्षेत्रामध्ये काम करणारी ही कंपनी आहे. मला सांगायला आनंद वाटतो की शेतकऱ्यांसाठी आम्ही त्याचा 10 एकराचा जो खतांचा डोस असेल बायो फर्टिलायझरचा, तो तुम्ही तुमच्या पॉकेटमध्ये कॅरी करू शकता. या पद्धतीचे नॅनो टेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट किंवा बायो फर्टिलायझर्स आम्ही डेव्हलप केलेले आहेत. बायो फर्टिलायझर्स असतील, बायो फंगिसाईड्स असतील, बायो इन्सेक्टिसाईड्स असतील, हे सर्व 2 mlच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये आम्ही डेव्हलप केलेले आहेत. तर 2 mlचा डोस तुम्ही फक्त 1 एकराला द्यायचा आहे. इथपर्यंत हे तंत्रज्ञान आम्ही पुढं घेऊन गेलेलो आहोत. तर जसं लहान बाळ असतं, लहान बाळ ज्या पद्धतीने मोठं होत जातं, तर त्या पद्धतीने त्याचा आहार विहार त्या गोष्टी बदलत चालतात. अगदी त्याच पद्धतीने आपण जमिनीमध्ये बी लावल्याच्या नंतर त्या बियाच्या जर्मिनेशनपासनं त्याची फांद्यांची अवस्था, फुलाची अवस्था, फळं आणि नंतर हार्वेस्टिंग, तर या प्रत्येक स्टेजला येणाऱ्या किडी असतील किंवा त्याला लागणारं न्यूट्रिशन असेल, तर सेंद्रिय शेतीबद्दल आपण बोलतो, परंतु या विविध स्टेजेसमध्ये लागणारे जे इनपुट्स आहेत स्पेसिफिकली इन सर्टिफाईड ऑर्गॅनिकमध्ये, तर ते पुरवण्याचं काम अंडर अ वन रूफ हे वारकेम बायोटेक या ठिकाणी करत आहे. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. पुनश्च एकदा आदरणीय अप्पासाहेब आणि मिलिंद सरांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी भूमी सेवा च्या सोबत आम्हाला त्या ठिकाणी जॉईन करून घेतलं आणि भविष्यामध्ये आपण शेतीमध्ये नक्कीच खूप मोठी क्रांती करूया असं मी या ठिकाणी आश्वस्त करतो. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण. आणि यानंतर आपण इतक्या मान्यवरांना ऐकल्यानंतर इतके विचार या मंचावरून उपस्थित झालेले आहेत, त्यानंतर एक व्हिडिओ तुम्हा सगळ्यांसमोर सादर होतोय. वेलकम टू वर्केम बायोटेक. वर्केम बायोटेक में आपका स्वागत है, जो टिकाऊ और जैविक खेती समाधान प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी है. हम पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले विविध उत्पादों की पेशकश करके उद्योग में अग्रणी होने पर गर्व महसूस करते हैं. हमारी विशेषज्ञता, हमारे पास 400 से अधिक समर्पित पेशेवरों की एक टीम है जो कृषि, मृदा सूक्ष्मजीव विज्ञान, पौध ऊतक संवर्धन, कीट विज्ञान और आनुवंशिकी जैसे कई क्षेत्रों में विशेष विशेषज्ञता रखते हैं. हमारी टीम में अनुभवी कृषि विशेषज्ञ, शोधकर्ता और फील्ड एक्सपर्ट शामिल हैं, जो लगातार नवाचार करते हुए हमारे उत्पादों को किसानों की बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित और बेहतर बना रहे हैं. हमारा मिशन, वर्केम बायोटेक का मिशन किसानों को सशक्त बनाना और उच्च गुणवत्ता वाले जैविक समाधानों के माध्यम से टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है. हम मृदा स्वास्थ्य को सुधारने, फसल उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल फसल सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विश्वास रखते हैं. हमारा ध्यान केवल अधिक उपज प्राप्त करने पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मृदा उर्वरता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी है. हमारी यात्रा, अपनी स्थापना से अब तक हमने किसानों, शोध संस्थानों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर जैविक इनपुट्स की प्रभावशीलता प्रदर्शित की है. वर्षों के दौरान हमने 50 लाख से अधिक भारतीय किसानों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे उनकी उपज और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है. साथ ही मृदा की उर्वरता भी बनी रही है. प्रमाण पत्र और मानक, हमारी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन करती हैं. हमें हुजी एमपी, ISO 9001 और ISO 22000 प्रमाण पत्र प्राप्त हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे उत्पाद कड़े गुणवत्ता प्रोटोकॉल के तहत निर्मित किए गए हैं. इसके अलावा हमारे जैविक उत्पादों को कंट्रोल यूनियन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो उसदा, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा द्वारा मान्यता प्राप्त एक वैश्विक प्रमाणन संस्था है. यह सुनिश्चित करता है कि हमारे उत्पाद 100% जैविक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं. व्यापक उत्पाद रेंज,
वर्केन बायोटेक जैविक खेती के लिए निम्नलिखित समाधान प्रदान करता है। जैविक खाद आवश्यक पोषक तत्व पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रदान करता है। जैव उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जैविक जल घुलनशील पोषक तत्व पौधों के विभिन्न विकास चरणों में आसानी से पोषण प्रदान करता है। बायोस्टिमुलेंट्स पौधों की मजबूत वृद्धि और तनाव सहनशीलता को बढ़ावा देता है। बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफंगिसाइड्स और बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स लाभकारी मृदा जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रभावी फसल सुरक्षा प्रदान करते हैं। बायोनेमेटोसाइड्स मिट्टी के कीटों का प्रबंधन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना करता है। हमारा प्रभाव हमारे शोधाधारित समाधानों ने परिणाम देने के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है। हमारे उत्पादों को कई सरकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं और प्रसिद्ध शोध संस्थानों द्वारा परीक्षण और मान्य किया गया है, जिससे यह साबित हुआ है कि वे उपज बढ़ाने, फसल की गुणवत्ता में सुधार करने और मृदा उर्वरता बहाल करने में सक्षम हैं। शोध और नवाचार हमारे शोध और नवाचार की प्रतिबद्धता हमारे द्वारा प्रकाशित कई शोध पत्रों में झलकती है, जो प्रसिद्ध कृषि और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। हम लगातार नई संरचनाओं को विकसित करने और अपने मौजूदा उत्पादों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर के किसानों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान कर सकें। टिकाऊ विकास के लिए साझेदारी हम भारत के कई राज्य सरकारों और कृषि एजेंसियों के साथ आधिकारिक रूप से साझेदारी कर गर्व महसूस करते हैं। इन सहयोगों के माध्यम से हम केवल उत्पाद प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दे रहे हैं, जिससे वे टिकाऊ और जैविक खेती के तरीकों को अपनाने में सक्षम हो सकें। हमारी पहुंच का विस्तार भारत में अपनी क्षमताओं को सफलतापूर्वक साबित करने के बाद अब हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अपनी टिकाऊ कृषि समाधान एक व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है, जिससे एक हरियाली और स्वस्थ ग्रह में योगदान किया जा सके। हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी कृषि उद्योग को बदलने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें, एक खेत से दूसरे खेत तक। भाइयों, बहनों और साथी नागरिकों, आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। मैं मेरी 75 वर्ष की वर्षगांठ पर एक ऐसा ऐलान कर रहा हूं जो भारत के भविष्य को बदल सकता है। पिछले 45 वर्षों से मैं आप सभी मेहनती और समर्पित केमिस्ट भाइयों के साथ काम कर रहा हूं। मुझे 9 बार आपके एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला। यह आपके विश्वास और सहयोग का प्रतीक है और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे केमिस्ट की मेहनत और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हमें कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिला। उस कठिन समय में आपने अपनी जान की परवाह किए बिना देशवासियों की सेवा की। इस दौरान हमने 850 बहादुर केमिस्ट साथियों को खो दिया, जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। आज मैं उन सभी महान आत्माओं को गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी कुर्बानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आज मैं एक और बड़े संकट की बात करना चाहता हूं। यह संकट हमारी मिट्टी की सेहत से जुड़ा है। हमारी मिट्टी अपनी उपज खो रही है। इसका सीधा असर हमारे भोजन पर पड़ रहा है। मिट्टी की सेहत बिगड़ने से फसलें पोषणहीन हो रही हैं। पोषणहीन भोजन से हमारी सेहत खराब हो रही है। और अगर हम समय पर नहीं जागे तो हमें आने वाले वर्षों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह संकट सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता की हानि और बढ़ता कार्बन उत्सर्जन इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। हर पत्ती जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक योद्धा बनती है। हर स्वस्थ मिट्टी का कण कार्बन को सोखकर धरती को ठंडा करता है और भूमि की उत्पादकता बढ़ाता है। यही उद्देश्य है हरित क्रांति 2 स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ लोग आंदोलन का। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। हमारे केमिस्ट पहले से ही मानव स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति की सेहत के लिए भी काम करें। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के 70% केमिस्ट खुद किसान हैं। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें अपनी 12,50,000 केमिस्ट शॉप्स को सिर्फ दवाइयां बेचने तक सीमित नहीं रखना है।
ये दुकानें अब जागरूकता के केंद्र बनेंगी, जहां किसान स्वस्थ मिट्टी और प्रगतिशील खेती के तरीकों के बारे में सीखेंगे। यह आंदोलन अकेले संभव नहीं है। हमें कई संगठनों और कंपनियों का समर्थन मिला है जो हमारे साथ खड़े हैं। हाइमीडिया लैबोरेटरीज, जो पिछले 50 वर्षों से माइक्रोबायोलॉजी में अग्रणी हैं, इस आंदोलन में हमें वैज्ञानिक समाधान दे रहे हैं। वार्केम बायोटेक हमें कंट्रोल यूनियन सर्टिफाइड जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और मृदा पुनर्जीवन के लिए उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। SME चैम्बर ऑफ इंडिया अपने लाखों सदस्यों के साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे किसान सहयोगी प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर रहा है। मणिपाल समूह, जो 1925 से देश की सेवा कर रहा है, इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद कर रहा है। लेसोको अपनी ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेती को और अधिक सटीक और प्रभावी बना रहा है। औसान लैबोरेटरीज हमें पत्तियों की कार्बन शोषण क्षमता बढ़ाने के लिए समाधान प्रदान कर रही है। ये सभी साझेदारियां हमें एक मजबूत नींव देती है। जब इतने बड़े संगठन हमारे साथ हैं, तो हम बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भारत में नागरिकों को शुरू में रासायनिक अवशेष मुक्त भोजन और धीरे धीरे जैविक भोजन उपलब्ध कराना, यह मेरा सपना है। इसे प्राप्त करने के लिए हम पूरे भारत में वार्केम कृषि के साथ खेती उत्पादन सर्टिफिकेशन प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहे हैं। मैं आप सबसे हरित क्रांति 2 की सदस्यता लेने की अपील करता हूं। यह सदस्यता न केवल आपकी भागीदारी का प्रतीक होगी, बल्कि यह मिट्टी, पर्यावरण और भविष्य की रक्षा के लिए आपका योगदान भी होगी। सदस्यता का मतलब है मिट्टी को सेहत बहाल करना, किसानों को सशक्त बनाना और एक स्वस्थ समृद्ध भारत का निर्माण करना। आप भूमि साथी QR कोड को स्कैन करके सदस्यता ले सकते हैं। हमारी मेडिकल शॉप्स अब हर पौधे की सेहत का भी ध्यान रखेंगी। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ पौधे, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ नागरिक बनेंगे। दोस्तों, यह आंदोलन केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यह मेरी 75 वर्षों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, जिसे मैं आप सबके साथ मिलकर पूरा करना चाहता हूं। हमने कोविड-19 का सामना एकजुट होकर किया। अब हमें उसी एकजुटता से मिट्टी, जलवायु और भोजन के संकट का सामना करना है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ भारत। आप सबका सहयोग और समर्पण इस मिशन को सफल बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। ऑगस्ट 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्याच्या 13 वर्षानंतर MS स्वामीनाथन यांच्या पुढाकाराने भारतात पहिली हरित क्रांती झाली होती. सांगायला अभिमान वाटतो की ती हरित क्रांती पुन्हा एकदा घडतीये आणि त्याचे जनक म्हणून आज इथे मंचावर उपस्थित हे सगळे मान्यवर आणि आपण सगळे सदस्य आहात. अर्थात भारताला पुन्हा एकदा सोने की चिडिया हेच नामविरुद्ध मिळवून देण्याचा प्रयत्न आजच्या या हरित क्रांती 2.0च्या लॉन्चने आपण सगळे करीत आहोत. या सगळ्यासाठी उपस्थित आज मान्यवर यांचे पुन्हा एकदा भूमी सेवाच्या वतीने मी खूप खूप आभार व्यक्त करते. आपण उपस्थित मान्यवरांचा इथे सन्मान करणार आहोत, सत्कार करणार आहोत. मी सर्वप्रथम विनंती करेन आपल्या सगळ्यांसोबत उपस्थित मिस्टर मनीष राऊत, श्रीयुत मनीष राऊत कृपया यांनी मंचावर यायचं आहे आणि हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. मनीष राऊत, एक मिनिट फक्त मला पाहिजे. आज आपण जे जमलो आहे ते आज आपण AICDने आपल्या ह्या पूर्ण प्रोजेक्टचं अनाऊन्समेंट केलेलं आहे की पूर्ण भारतामध्ये आपण हा प्रोजेक्ट घेऊन जाणार आहोत. पण सुरुवातीला महाराष्ट्रामध्ये आता आपणशी माझं थोडंसं चर्चा झाली, आपणही परमिशन दिल्यामुळे मी इथे उभा आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्याचं सुरुवात आपल्याला करायची आहे आणि 10-10चे 2 लॉट हे आम्ही लगेचच सेंटर चालू करतो आहे. आणि त्याच्यानंतर हा ज्यावेळेला आकडा 75 पोचेल, आपणच्या वाढदिवसाच्या जो 75 आकडा पोचेल त्या परत एकदा आपण इथे भेटणार आहोत. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. प्लीज श्री मनीष राऊत, आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावर यायचं आहे. मी मान्यवरांना विनंती करेन आपण पुष्पगुच्छ देऊन मनीषजींचा सन्मान करायचा आहे. पुढील सन्मानासाठी मी डॉक्टर प्रवीण यांना विनंती करेन कृपया त्यांनी मंचावर यावं. मनीष राऊत आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने अप्पासाहेबांचा इथे
सन्मान किंवा आशीर्वाद घेतात असं म्हणायला हरकत नाही. डॉक्टर प्रवीण इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर राजेश वारकी सर को. यानंतर मी मंचावर आमंत्रित करू इच्छिते श्री संदीप जायसवाल. श्री संदीप जायसवाल एंड उनके टीम मेंबर्स. एंड डॉक्टर जाधव फ्रॉम टीम औसान. I'd like to invite Mr. Abel Matthew on the stage from Leseco Technologies. I'd like to invite Mr. Deepak Jawar on the stage for the felicitation. Thank you, sir. एंड इसके बाद आज का हमारा आखिरी सम्मान अर्थात लास्ट बट नॉट द लीस्ट विशाल लंगोटे. यानंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार भूमिसेवाच्या वतीने आज उपस्थित मान्यवर आणि अर्थात सगळ्या सदस्यांचे. मी मान्यवरांना विनंती करेन कृपया आपण बसून घ्यायचे आणि जाण्यापूर्वी भूमिसेवाचे CEO श्री मिलिंद देशपांडे यांच्या वतीनं आपण वोट ऑफ थँक्स इथे जाहीर करणार आहोत. श्री मिलिंद देशपांडे. मला आज खरंच म्हणजे एकदम आनंद वाटला की सगळ्या लोक आले. या सगळ्या टेक्नॉलॉजीज जोडायसाठी जवळजवळ 1.5 वर्ष लागलं आत्तापर्यंत काम करायला. आणि सकाळी 6 वाजता जसं मनीष म्हटला मगाशी की 1.5 वर्षापूर्वी सकाळी 6 वाजता आम्ही दोघं भेटलो आणि तेव्हा आमचा विषय चालू झाला. त्याच्या आधी आम्ही जेव्हा भेटलो होतो तेव्हा आम्ही हायड्रोपोनिक या विषयावरती 7.5 वर्ष काम करत होतो वेगवेगळ्या याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर हा मातीचा विषय घेऊन तो सकाळी 6ला आला आणि तेव्हापासून जे मी आता गेली 1.5 वर्ष काम करतोय आणि आता ही सगळी मंडळी इथं येऊन सगळे जोडून आपण 4 महत्त्वाच्या गोष्टी करतोय, ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा अवेअरनेस हा सगळ्यात महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे. कारण आज ना सिटिझन्स, कॉमन सिटिझन जे आहेत, अर्बन सिटिझन, ते पण अनअवेअर आहेत आणि फार्मर पण अनअवेअर आहेत. लोकांना माहितीच नाही चांगल्या टेक्नॉलॉजी. लोकांना हे माहितीच नाही की सॉईल चांगली करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे अवेअरनेस झाल्यावरती त्याला ॲसेस करणंही गरजेचं आहे. प्रॉब्लेम पहिले ॲसेस केल्याशिवाय आपल्याला समजणार नाही की बाबा माती कशी आहे, त्याला काय प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याच्यामध्ये कुठले आहेत. तर 17 पॅरामीटरची टेस्ट त्यातून तयार होते. त्याच्यानंतर दुसरा जो महत्त्वाचा मुद्दा होता की झाड 2 ते 3 ठिकाणून त्याला हे मिळू शकते, एनर्जी मिळू शकते. एक म्हणजे ते मातीतून, कारण तो शेवटी माती हा बेस आहे त्याचा. आणि त्याचप्रमाणे त्याला दुसरा जो बेस आहे तो म्हणजे त्याच्या लीफमधनं. तर औसांनी जे काम केलेलं आहे की त्या पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजीमध्ये लीफमुळे आपण CO2 ॲब्सॉर्ब करून
आपण एन्व्हायरमेंटसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात काम करणार आहे. कारण CO2 जेव्हा ॲब्सॉर्ब होतो, आज गेल्या 50 वर्षामध्ये जेव्हा आपण एवढा CO2 ॲब्सॉर्ब बाहेर टाकलेला आहे, 10 वर्ष जर आपण अशा टाईपची अवसान टेक्नॉलॉजीसारखी टेक्नॉलॉजी वापरली तर तो जो CO2 ॲब्सॉर्ब होईल त्यांनी हे आज जे ग्लोबल वॉर्मिंग आहे ते रिव्हर्स करता येईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मातीतल्या कणाला जर का वार्केनसारखे प्रोडक्ट ज्याच्यातून माती ऑर्गॅनिक बनवणे आणि त्यातून हे केल्यानंतर माती आज मेजॉरिटी ऑफ तुमचं जे पोल्युशन आहे ग्लोबल वॉर्मिंग आहे ते मातीमुळे होतं आहे. कारण माती खराब झाली आणि ती माती आता कार्बन ॲब्सॉर्ब करायच्या ऐवजी कार्बन बाहेर फेकते. तर जर का वार्केमचे वेगवेगळे प्रोडक्ट त्यांना वापरून आपण त्याप्रमाणे मातीला ऑर्गॅनिक दोन्ही या प्रोडक्टचाही वापर केला तर डेफिनेटली मला अशा वाटते की पुढच्या 5 ते 10 वर्षामध्ये आपण ग्लोबल वॉर्मिंगचा इफेक्ट आणू शकू. आणि हळूहळू भारतात तर आपण करणारच आहे, त्याप्रमाणे वर्ल्ड वाईड पण आपल्या या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. माती ही सगळीकडेच अवेलेबल आहे. सगळ्यात मोठा बेस जर बघितलं, सगळ्यात मोठं कव्हरेज हे मातीचं आहे आज. त्याचप्रमाणे गरज काय होती की आज या दोन्ही गोष्टी नंतर केल्यानंतर त्याला मॉनिटर करणं हा एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे की झाडाची वाढ किती झाली, झाडाला कुठलं पर्टिक्युलर इन्फेक्शन झालं आहे का, त्यानंतर या सगळ्यासाठी कुठल्या ना कुठलं तरी एक सॅटेलाईट मॉनिटरिंग किंवा ड्रोन मॉनिटरिंग या टाईपमधल्या टेक्नॉलॉजीची गरज होती. म्हणून मी या सगळ्या अलग वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीला एकत्र आणून हा प्रयत्न केला. तुम्ही या सगळ्या लोकांनी आज इथं पर्सनली येऊन आणि एवढा वेळ देऊन आप्पासाहेबांनी त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी सकाळी वेळ द्यावा, संध्याकाळी 4 वाजता त्यांच्याकडे शरद पवार सगळे लोक येणार तरीसुद्धा त्यांनी आज सकाळी वेळ दिला. त्याबद्दल मी फार आभारी आहे त्यांचा आणि आपल्या सगळ्या टीमचा मी आभारी आहे की बाबा तुम्ही सगळ्यांनी येऊन या प्रोग्रामला एक पूर्णत्व आणलं आणि आपण खरंच काहीतरी भारतात मोठं काम करू. माझ्या हिशोबाने 14 कोटी फार्म लँड्सपर्यंत आपण पोचलं पाहिजे आणि ते आपण इझिली पोचू शकतो आता जर का वेगवेगळ्या. आणि जो भूमीसाथी चॅटबॉट बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये सर्व टाईपचे फीचर्स आपण दिलेत की फार्मर इझिली व्हॉट्सॲपवरती काम करू शकतो. म्हणजे त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं ॲप डाउनलोड करा किंवा कुठली गोष्ट करेल. तर एवढं बोलून मी माझं हे संपवतो, भाषण संपवतो. आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर एव्हरीबडी टू पुन्हा एकदा भूमी सेवाच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने मी हेमलता तुमचे आभार व्यक्त करते. थँक्यू वन्स अगेन. सायनिंग ऑफ फॉर टुडे.